Hello everyone. Let's see fourth topic in pharmaceutical jurisprudence, Pharmacy Act 1948, and into that 5 chapters are there in this topic. Pharmacy Act 1948, Chapter 1, Objective and Definition, Chapter 2, Central Pharmacy Council and Education Regulation, Chapter 3 we are going to see State Pharmacy Council and Joint State Pharmacy Council, Chapter 4 we are going to see pharmaceutical registration process, and Chapter 5 offenses and penalties. So let's see the contents one by one that we are going to cover under the series of video. So these 5 chapters are divided into headings, into subtopics, and that is, just see. Firstly, in this video we will see what are the learning outcomes, an introduction about the Pharmacy Act 1948, how it came into existence, objective, definition part that is coming under Chapter 1, Pharmacy Council of India and Education Regulation coming under Chapter 2, approval of institute, it is also coming under Chapter 2, State Pharmacy Council and Joint State Pharmacy Council, Chapter number 3, registration of pharmacists, that is coming under Chapter number 4, and 5th chapter under this Act, offenses and penalties. So we are going to see one by one. We have divided the videos according to chapter numbers, and we will see Chapter 1, 2, 3, 4 and 5. So in this video we are going to see everything about the chapter number 1. So what are the learning outcomes? After watching this video you will be able to explain the objectives of this Act, Pharmacy Act, and we will be aware about definitions and their meaning under the provisions of Pharmacy Act 1948. So let's see what is the introductory aspect. We know there was a drug inquiry committee established in 1931, and this committee had given about 90 recommendations, and out of that the major recommendation was there should be establishment of some legislation, some rules, acts which will control the profession and the practice of pharmacy in India. So हमें पता है ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो 1931 में एस्टैब्लिश हुई थी, इन्होंने लगभग 90 रिकमेंडेशंस दिए थे, और उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट या हेड रिकमेंडेशंस थी उनमें से एक थी कि फार्मेसी प्रोफेशन और फार्मेसी एजुकेशन को पूरे भारत भर में एक ही एक्ट या एक ही रेगुलेशन के अंडर लाया जाए. सो एक ये रिकमेंडेशन थी, और दूसरा भी एक कमेटी का रिकमेंडेशन था, दैट इज द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी. सो जस्ट आफ्टर ड्रग इंक्वायरी कमेटी देयर वाज अ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी. So this committee has also given recommendation there should be a unique act or unique legislation system to control pharmacy education and pharmacy profession in India. So this act, Pharmacy Act 1948, it is the outcome of these 2 recommendations. So ये किसका फल प्राप्ति है? ड्रग इंक्वायरी कमेटी और ये जो हेल्थ सर्वे डेवलपमेंट कमेटी है, इन दोनों ने जो दी थी रिकमेंडेशन दी थी, जो सुझाव दिए थे, सो उनका ये आउटकम है, इनका परिणाम ये है कि जिसकी वजह से हमें क्या मिला? फार्मेसी एक्ट 1948 मिला, जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया ऑन 4 मार्च 1948. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है फार्मेसी एक्ट के? 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है straight away, what are the objectives of Pharmacy Act 1948, or in MCQs also the question may be there on the objectives. So 2 objectives, to regulate the profession and practice of pharmacy, means business. So pharmacy का जो practice पूरे भारत भर में चल रहा है, वो रिटेल की फॉर्म में हो सकता है, वो होलसेल में हो सकता है, वो हॉस्पिटल फार्मेसी के फॉर्म में हो सकता है, या कम्युनिटी फार्मेसी के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन सेल के फॉर्म में हो सकता है. सो जो भी प्रोफेशन पूरे भारत में फार्मेसी का है, जो प्रैक्टिस चल रही है फार्मा फील्ड में, उसे रेगुलेट करना है, ये ऑब्जेक्टिव रहा. सेकंड ऑब्जेक्टिव, टू रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, मीन्स जो कुछ भी एजुकेशनल मैटर है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी में, उसका जो स्टेटस है, जो एक स्तर है या फिर उसका जो लेवल है, वो ऊंचा करना है, बढ़ाना है, ताकि जो हमारा प्रोफेशन है वो भी लॉयल और रिस्पेक्टेड रहे, रिस्पेक्टेबल रहे, क्योंकि ये नोबल प्रोफेशन है. So these are 2 objectives of Pharmacy Act, to regulate the profession and practice of pharmacy and to raise the status of profession of pharmacy in India. Now we will see the definitions under this topic.
So the first definition is Central Council. So Central Council means it is nothing but the Pharmacy Council of India, which is established in New Delhi. That is the Central Council. So multiple choice question is always there in competitive examination. That is the Central Council means or the Pharmacy Council means. So both are same term. Central Council means Pharmacy Council of India, which is located in New Delhi. That is the central level. Then Central Register. It is the register of pharmacies maintained by Central Council. Obviously Central Council ने जो मेंटेन किया हुआ रजिस्टर है उसे क्या कहेंगे हम? फार्मासिस्ट का रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज मेडिकल प्रैक्टिशनर. Same definition we are going to see under Drug and Cosmetic Act as registered medical practitioner. So what is the definition? Medical practitioner means a person holding a qualification granted by an authority. कुछ अथॉरिटी है जिन्होंने ग्रांट किया है, जिन्होंने अप्रूव किया है, ऐसा क्वालिफिकेशन अगर किसी इंसान के पास है, स्पेसिफाइड और नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3. ये कहाँ पे नोटिफाई या स्पेसिफाई किया है? अंडर सेक्शन 3 में ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 और स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्स टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. सो कहाँ पे है? एक तो इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 या फिर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956. इनमें से किसी एक में अगर नोटिफाई किया गया ऐसा क्वालिफिकेशन है अंडर सेक्शन 3, ऐसा क्वालिफिकेशन है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे. सेकेंड, और रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन. ये पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, मतलब कि पात्र है, क्वालिफाइड है. इन अ मेडिकल रजिस्टर ऑफ अ स्टेट. राज्य के मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन के लिए ये क्वालिफाइड है या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन्स प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. उन लोगों का ये रजिस्टर है जो मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं. सो ये रही सेकेंड डेफिनेशन. थर्ड, रजिस्टर्ड इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट. ये पर्सन मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट में रजिस्टर्ड है, बट हु ऑल्दो नॉट फॉलिंग विथ सब क्लॉज 1 और 2, जो कि हमने पहले देखा, इन दोनों में भी ये कहीं पे नहीं आता है. मतलब कि इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट के हिसाब से या मेडिकल काउंसिल एक्ट के हिसाब से ये क्वालिफाइड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए उसके एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब ये दोनों क्लॉज में नहीं आता है. फिर भी इज डिक्लेयर्ड बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर. ये एक साधारण या विशिष्ट सूचना द्वारा बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट या साधारण सूचना द्वारा अगर ये डिक्लेयर्ड है, मतलब ये पूरी तरह से घोषित किया गया है, इन दिस बिहाफ मतलब कि पर्सन प्रैक्टिसिंग द मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. ये बंदा मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा है, इस एक्ट की कुछ पर्पजेस फुलफिल कर रहा है, और ये सब क्लॉज 1-2 में नहीं आता है. फिर भी अगर गवर्नमेंट कहे, डिक्लेरेशन दे, तो तब भी इसे हम क्या कहेंगे? मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे. कुछ विशिष्ट या कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन रहते हैं कि सिचुएशन के डिमांड के हिसाब से या फिर एरिया जो है, मतलब आउटसाइड टेरिटरी एरिया है, तो वहाँ पे अगर सर्विसेज नहीं मिलती है, तो ऐसे लोगों को जो सर्विसेज देते हैं या फिर उतने इक्विवेलेंट टैलेंटेड है, तो इन लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है? वो एक स्टेटस देती है कि दीज आर मेडिकल प्रैक्टिशनर, लेकिन उनके पास वो गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन होना चाहिए. नेक्स्ट डेफिनेशन, रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन. एक तो रजिस्टर्ड है या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है. इन द रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट फॉर अ स्टेट अंडर डेंटिस्ट एक्ट 1948. डेंटिस्ट एक्ट 1948 के तहत राज्यों के डेंटिस्ट का जो रजिस्टर रहता है, उनमें अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या फिर क्वालिफाइड है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे. और लास्ट है द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. वेटरनरी मेडिसिन मतलब ऐसे मेडिसिन जो पशुओं के लिए बनाए जाते हैं और पशुओं के लिए यूज किए जाते हैं. सो वेटरनरी मतलब कि पशुओं का शास्त्र. ओके, सो इसमें अगर प्रैक्टिस करता है ये बंदा, ये पर्सन, एंड हु पजेसेस द क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. इनके पास स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्देशित किए गए क्वालिफिकेशन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे. अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या याद रखना है? सेक्शन 3.
सो क्वेश्चन आता है अंडर विच सेक्शन ऑफ मेडिकल डिग्रीज एक्ट और मेडिकल काउंसिल एक्ट। तो सेक्शन 3 है, ये कैसे हम याद रखेंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसे भी हम आगे देखने वाले डेफिनेशन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सो इनका एब्रीविएशन रहता है RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो RMP कितने लेटर से, 3 लेटर से। सो इसके हिसाब से हम याद रखेंगे सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 3। सो ये आगे आने वाला है, MCQ में भी एक क्वेश्चन है, सेक्शन 3। नेक्स्ट डेफिनेशन, सी हु एम, मैं कौन हूँ। ओके, सो ये खुद की डेफिनेशन है हमारी, बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, हु आई एम। सो आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो डेफिनेशन है मेरी, आपकी खुद की। अगर आप बडिंग फार्मासिस्ट हो तो होने वाले हो, तो आपकी डेफिनेशन रहेगी पर्सन हुज नेम, ऐसा पर्सन यानी कि मैं, मेरा नाम, फॉर द टाइम बीइंग मतलब कि वो पूरे कार्यकाल के लिए, इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट, मेरा नाम एंटर किया गया है किसमें, रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट, मेरे राज्य के रजिस्टर जो है फार्मासिस्ट का, उसमें मेरा नाम एंटर किया गया है। इन विच, जिसमें ही इज और शी इज, फॉर द टाइम बीइंग, मैं उस कार्यकाल के दौरान, रिसाइडिंग और कैरिंग ऑन, रह रही हूँ मतलब कि चला रही हूँ, या कैरिंग ऑन मतलब कि कैरी कर रही हूँ, क्या कैरिंग ऑन हिज और हर प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी, मैं प्रोफेशन निभा रही हूँ, कहीं तो मेडिकल होगा तो वो बिजनेस कहलाएगा। सो कैरिंग ऑन हिज बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। सो हम किश्तों में डेफिनेशन याद रखेंगे। पहला किश्त था अ पर्सन, सेकेंड हुज नेम, थर्ड फॉर द टाइम बीइंग, फोर्थ इज एंटर्ड, फिफ्थ इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट, नेक्स्ट इन विच ही इज फॉर द टाइम बीइंग रिसाइडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। ऐसा हम किश्तों में डेफिनेशन याद रखेंगे। ये हमारी डेफिनेशन है तो हमें ये याद रहनी ही चाहिए, ये 2 मार्क के लिए हमेशा पूछी जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्प्लेस्ड पर्सन। सो व्हाट इज डिस्प्लेस्ड पर्सन, ये ऐसा पर्सन है हु ऑन अकाउंट ऑफ सेटिंग अप ऑफ डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था 1947 में, सो उस वक्त के जो हालात थे, रहने का जो डिस्टर्बेंसेस था, और ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस और द फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस, अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस नहीं है तो कुछ डर था कि आगे जाके कुछ तकलीफ हो सकती है। कहाँ पे, इन एरिया नाउ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐसे एरिया में जो अब आज की डेट में पाकिस्तान का पार्ट है, तब नहीं था, बिफोर पार्टीशन। अगर ऐसा कोई पर्सन हैज ऑन और आफ्टर 1 डे मार्च 1947, 1 मार्च 47 को या फिर उसके बाद में लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, उसने खुद छोड़ा है या फिर उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया है, हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन सच एरिया, कहाँ पे आया है वो, एंड हु हैज सिंस देन बीन रिसाइडिंग इन इंडिया, अब वो इंडिया का भाग है, वहां पे अगर वो रहता है, रिसाइडिंग मतलब रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेस्ड पर्सन कहेंगे, जिसे हम निर्वासित कहते हैं, जो भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ झेलनी पड़ी है। सेकेंड पार्ट है डेफिनेशन का, एनी पर्सन हु ऑन अकाउंट ऑफ सिविल डिस्टर्बेंसेस, ऐसे ही अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहने के लिए, और फियर ऑफ सच डिस्टर्बेंसेस, अगर डर है, इन कहाँ पे, इन एरिया नाउ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बांग्लादेश, ऐसे एरिया में जो आज बांग्लादेश का है लेकिन उस वक्त नहीं था, हैज आफ्टर 14 डे अप्रैल 1957 बट बिफोर 25 मार्च 1971, 14 अप्रैल 1957 या 25 मार्च 1971, उस दौरान अगर उसने ये देश, ये एरिया छोड़ा है जो आज बांग्लादेश का है लेकिन तब नहीं था, लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस्ड, छोड़ा है या छोड़ने को मजबूर किया है, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जो जहाँ पे वो रहता था, इन सच एरिया हु हैज सिंस देन बीन रिसाइडिंग इन इंडिया, तब से अब तक वो इंडिया में रह रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेस्ड पर्सन मतलब के निर्वासित। तो ये डेट क्यों दी है, 14 अप्रैल 57 और 25 मार्च 71। सो 71 को ऑफिशियली बांग्लादेश, पूर्व पाकिस्तान है, वो डिवाइड हुआ और नया देश निर्माण हुआ जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अगर कोई आता है तो उसे हम डिस्प्लेस नहीं कहेंगे, वो बांग्लादेश का रहवासी है।
So why these two dates are in between these two dates, 14th April 1957 and 25th March 1971? Because on 71 there was a agreement, and on the basis of that agreement East Pakistan part was separated and it was divided and new country was established, that is Bangladesh. So 71 के बाद से पूर्व पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और बांग्लादेश ये नया देश निर्माण हुआ. सो इससे पहले अगर कोई उस एरिया, इस इलाके से आता है ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस और फियर ऑफ डिस्टर्बेंसेस in India, then that person will be called displaced person. So next definition is repatriate means any person of Indian origin, मतलब कि ये मूल इंडियन है, who on account of civil disturbances in any area, ऐसे ही कोई डर या फिर सच में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो, रहने के लिए कुछ तकलीफ हो, नाउ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बर्मा, जो कि आज बर्मा का पार्ट है, और श्रीलंका और युगांडा और एनी अदर कंट्री, ऐसे अगर कोई और देश हो, मतलब के पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़ के, क्योंकि इन दोनों देशों के बारे में अगर ये चीजें आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन कहते हैं, विस्थापित. सो अगर ये बर्मा, श्रीलंका, युगांडा या फिर कई और देश हो और वहां पे रहने वाला ये इंडियन इंसान है, हैज आफ्टर 14th अप्रैल 1957, अगर उसने 14 अप्रैल 1957 के बाद लेफ्ट और हैज बीन डिस्प्लेस्ड हिज प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वहां से वो वापस आया है, इन सच एरिया हु हैज सिंस देन बीन रिसाइडिंग इन इंडिया, तब से अब तक वो इंडिया में रह रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिपेट्रिएट कहेंगे. सो दीज आर द डेफिनेशंस. Next is UGC, that is the University Grants Commission. So it means University Grants Commission established under Section 4 of University Grants Commission Act 1956. That is UGC का मतलब क्या है, ये University Grants Commission है, established under Section 4 of UGC Act 1956. So MCQ में हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, under which section of UGC Act 1956 UGC is established. So section 4 हमें कैसे याद रखना है, so हमें बस एक मिलाना है, UGC के लेटर कितने हैं, 3 लेटर्स है, उसमें एक ऐड करना है हमें, ये रहा section 4. Next is Indian University, that is the last definition, means a university within meaning of section 3 of the UGC Act 1956 and include such other institutions being institutions established by or under central act as the central government by notification in official gazette specify in this behalf. तो क्या है ये इंडियन यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेक्शन 3 के तहत, किसका, यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 तहत अगर एस्टेब्लिश की जाती है और उसमें इंक्लूड सच अदर इंस्टीट्यूट, उसमें और भी इंस्टीट्यूट्स है, लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटी रहती है कि उसमें इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस रहती है, बीइंग इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल एक्ट के अनुसार ये एस्टेब्लिश की गई है और इनका डिक्लेरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडियन यूनिवर्सिटी कहेंगे. So these were definitions and this was the introductory part, that was chapter 1, objectives and some definitions under Pharmacy Act 1948. In next video we will see chapter 2, that is the Central Pharmacy Council and Education Regulations. Thank you so much for watching this video.